everyone, welcome to the Edu Empire. My name is Angelina Paul and I am a nursing educator and teacher. On this channel, I will explain nursing and medical topics in a simple, easy and exam-oriented way. If you are a nursing student or healthcare learner, this channel is for you. So don't forget to like, share and subscribe. Let's start today's class. Today we will learn about tympanic membrane perforation. It causes, symptoms, complications and management in a simple exam-oriented way. Before starting, let us see the objectives of today's topic. After this class, you will be able to define tympanic membrane perforation, explain the anatomy and function of the tympanic membrane, list the causes of tympanic membrane perforation, pathophysiology, clinical manifestation, diagnostic complication, and medical surgical management. So let's start from anatomy of the tympanic membrane. So it is also called eardrum. It is a thin transparent membrane that separates the external ear from the middle ear. It is in oval shape and slightly cone shaped inward. It has three layers: outer layer, middle layer, inner layer. We talk about later. It is about 9 to 10 mm in diameter and 0.1 mm thick. Comes to the layer of the tympanic membrane. So it has three layers: outer layer made up of skin continuous with the external ear canal, middle layer provide strength composed of radial and circular fibrous, inner layer continuous with the mucosa of the middle ear. So let's come on the function of the tympanic membrane. The main function of the tympanic membrane is help in hearing. It vibrates when sound waves hit it and transmit sound to the middle ear ossicle. It also protects the middle ear from foreign body, bacteria and water. It converts sound wave into vibrations, transmit vibration to the ossicles, protect middle ear from infection and foreign body, maintain middle ear pressure. इंट्रोडक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। तो आइए हम जानते हैं कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता क्या है। ईयर एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमें सुनने में मदद करता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम साउंड को मिडिल ईयर तक ट्रांसमिट करता है, मतलब पहुंचाता है। जब ईयर ड्रम में होल हो जाता है उससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं। आज हम इस टॉपिक को सिंपल तरीके से समझेंगे। Definition of tympanic membrane perforation. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का मतलब है ईयर ड्रम में होल या रप्चर हो जाना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो आउटर ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करती है। जब इस मेम्ब्रेन में इंफेक्शन, ट्रॉमा या प्रेशर से टीयर हो जाता है उस कंडीशन को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं। Tympanic membrane perforation is the presence of the hole or rupture in the eardrum separating the outer ear and middle ear. Etiology of tympanic membrane or causes of tympanic membrane. Tympanic membrane perforation का कुछ कॉमन कॉजेज हैं। सबसे पहले कॉज है ट्रॉमा, जैसे ईयर पर स्लैप लगना, फॉरेन बॉडी डालना या कॉटन बड से इंजरी होना, जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, टीयर हो जाता है या होल हो जाता है। नेक्स्ट इज ईयर इन्फेक्शन, जैसे एक्यूट या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। इन्फेक्शन से पस बनता है जो प्रेशर क्रिएट करके ईयर ड्रम को परफोरेट कर देता है, मतलब उसमें टीयर कर देता है, होल कर देता है।
कभी कभी लाउड साउंड या ब्लास्ट इंजुरी से भी ईयर ड्रम रप्चर हो सकता है। हम लोग कभी कभी वैक्स को रिमूव करते हैं ईयरबड से, तो केयरलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इंजुरी हो जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। Skull fracture is the also reason of the tympanic membrane perforation. Barotrauma है, it is a stress exerted on the eardrum when the air pressure in the middle ear. जब आपके मिडिल ईयर में क्या होता है, एयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल या रप्चर हो जाता है, उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं। Severe blow to the ear and foreign body that have been pushed too far into the external auditory canal are also the reason for the tympanic membrane perforation. तो आइए अब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन की पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साउंड वेव को रिसीव करके मिडिल ईयर ऑसिकल तक ट्रांसमिट करती है, जब ईयर इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर में पस और फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जिससे प्रेशर इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज प्रेशर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बल्ज कर देता है और फाइनली मेम्ब्रेन टियर हो जाती है, जिसे परफोरेशन कहते हैं। ट्रॉमा या लाउड साउंड से डायरेक्टली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है और तुरंत रप्चर हो जाती है। परफोरेशन होने के बाद साउंड ट्रांसमिशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, और होल होने की वजह से बैक्टीरिया और वाटर मिडिल ईयर में इजीली एंटर कर जाता है, जिससे रिपीट इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो ये पैथोफिजियोलॉजी थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन की। Now comes to clinical features of tympanic membrane perforation. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइन और सिम्टम्स डिपेंड करते हैं परफोरेशन के साइज और कॉज पर। तो सबसे कॉमन सिम्टम्स है ओटेल्जिया यानी कि ईयर पेन, जो इन्फेक्शन या ट्रॉमा के टाइम होता है। पेशेंट को ईयर डिस्चार्ज हो सकता है, जो पस या वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है। फुलनेस, पेशेंट को फील होगा कि उसके कान में कुछ भरा हुआ है। हियरिंग लॉस भी होता है क्योंकि साउंड ट्रांसमिशन डिस्टर्ब हो जाता है, इससे कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। कुछ पेशेंट को टिनिटस यानी ईयर में रिंगिंग साउंड फील होती है। कभी कभी डेजीनेस या वर्टिगो भी हो सकता है, स्पेशली अगर मिडिल ईयर अफेक्टेड हो। अगर इन्फेक्शन सीवियर हो तो फीवर और मेलेज भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है लोकेशन और साइज के बेसिस पे। So there are three types of tympanic membrane perforations. First one is central perforation. Second one is marginal perforation. Third one is attic perforation. तो सबसे पहला टाइप है सेंट्रल परफोरेशन। इसमें होल पार्स टेंसा के बीच में होता है और मार्जिन से टच नहीं करता। ये क्रोनिक सुप्रावेटिव ओटाइटिस मीडिया में कॉमन होता है। दूसरा टाइप है मार्जिनल परफोरेशन। इसमें परफोरेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के मार्जिन तक एक्सटेंड हो जाता है। ये डेंजरस होता है क्योंकि कोलेस्टीडियोमा डेवलप हो सकता है। तीसरा टाइप है एटिक परफोमा। इसमें परफोरेशन पार्स फ्लैसिडा यानी ऊपर पार्ट में होता है। इससे एटिक डिजीज भी कहते हैं और ये भी कोलेस्टीडियोमा से रिलेटेड होता है। साइज के बेसिस पर परफोरेशन को स्मॉल, मीडियम और लार्ज परफोरेशन में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मार्जिनल और एटिक परफोरेशन डेंजरस हो सकते हैं। अब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन समझते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग की जाती है, जिसमें पेशेंट से ईयर पेन, डिस्चार्ज, हियरिंग लॉस, ट्रॉमा या इन्फेक्शन की हिस्ट्री पूछी जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कोई डिस्चार्ज हो रहा है कि पस डिस्चार्ज हो रहा है,
स्वेलिंग कितनी है, रेडनेस है कि नहीं है। नेक्स्ट हम ऑटोस्कोपी करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ऑटोस्कोप से ईयर कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डायरेक्टली देखा जाता है और यह परफोरेशन कंफर्म किया जाता है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री की जाती है हियरिंग लॉस असेस करने के लिए, जिससे कंडक्टिव हियरिंग लॉस डिटेक्ट होता है। टिम्पैनोमेट्री मिडिल ईयर फंक्शन चेक करने के लिए यूज होता है। अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है या कॉम्प्लिकेशंस का डाउट है तो हम पेशेंट को एक्सरे, मेस्टॉइड या सीटी स्कैन टेम्पोरल बोन के लिए सजेस्ट करते हैं। ईयर डिस्चार्ज है तो ईयर डिस्चार्ज को हम कल्चर या सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भेजते हैं लेबोरेटरी, ताकि हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकें। अब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के मैनेजमेंट को समझते हैं। मैनेजमेंट को मेनली मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। इट्स कॉल्ड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। So there is no specific treatment is needed for the ruptured eardrum. So vast majority of ruptured eardrums heals within 3 months. A tympanic membrane perforation heals spontaneously within a week to months after rupture. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। पेशेंट को एंटीबायोटिक, ईयर ड्रॉप्स और ओरल एंटीबायोटिक दिए जाते हैं अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो। पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स पेन और इन्फ्लामेशन कम करने के लिए यूज किया जाता है। पेशेंट को स्ट्रिक्टली ईयर ड्राई रखने की एडवाइस दी जाती है, यानी स्विमिंग और वाटर एंट्री अवॉइड करना चाहिए। अगर परफोरेशन छोटा हो तो कई बार स्पॉन्टेनियसली हील हो जाता है। Analgesic to reduce pain, warmth may be applied to relieve discomfort. Aseptic cleansing of external auditory canal with alcohol prevent upper respiratory infection. Prohibited nasal blow. Nasal blow को हम prohibit कर देते हैं ताकि मिडिल ईयर पे प्रेशर ना पड़े। ईयर ड्रॉप्स, अननेसेसरी ईयर ड्रॉप्स को हम प्रोहिबिट मतलब बंद कर देते हैं। While healing the ear must be protected from the water. If 3 months later perforation still exists, surgical management is indicated. So, अगर परफोरेशन लार्ज हो या हील ना हो तो सर्जरी की जाती है। मेनिंजियोप्लास्टी में परफोरेशन का ग्राफ्ट से रिपेयर किया जाता है। मतलब a surgery to patch a hole in the tympanic membrane is indicated for non-healing perforation, that is called meningioplasty. Closure of perforation is called meningioplasty for a small dry central perforation caused by trauma. नेक्स्ट इज टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मिडिल ईयर स्ट्रक्चर दोनों को रिपेयर किया जाता है। इन दिस टिश्यू कॉमनली फ्रॉम द temporalis fascia is placed across the perforation to allow healing. Alloderm grafts from synthetic material may be used if patient have multiple previous surgery. Ossiculoplasty, ossicular reconstruction if ossicle is involved. पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब ऑपरेशन के बाद जो भी हमें पेशेंट को केयर देनी है उसके बारे में हम देखते हैं। कीप द ईयर ड्राई, ईयर को ड्राई रखना है। कवर ईयर व्हाइल टेकिंग अ बाथ और शावर। यूज कॉटन बॉल कोटेड विद वेस्टीन टू प्रोटेक्ट द ईयर। डू नॉट लिफ्ट एनी हैवी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव वीक। मतलब कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट वीक होगा ऑपरेशन के उस टाइम पे हमें कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। इससे क्या होता है कि हमारे कान पे, ईयर पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि सर्जरी को में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। स्नीज विथ माउथ ओपन। हमें जब भी छींकना है तो पेशेंट को बताना है कि जब भी वो छींके तो मुंह खोल करके छींके।
Blow nose gently or avoid blowing nose. Avoid air travel during the first 2 weeks. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम कुछ बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो करें। सबसे पहला पॉइंट है ईयर इन्फेक्शन का। अर्ली ईयर ट्रीटमेंट। ईयर पेन या डिस्चार्ज हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ईयर क्लीनिंग के लिए कॉटन बड्स या शार्प ऑब्जेक्ट का यूज अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है, जिससे आपका ट्रॉमा हो सकता है ईयर में। स्विमिंग या बाथिंग के टाइम पर ईयर में पानी जाने से बचाना चाहिए, स्पेशली अगर ऑलरेडी ईयर प्रॉब्लम हो तो। लाउड नॉइज और ब्लास्ट एक्सपोजर से ईयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे ईयर प्लग का यूज करके। मैनेज अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मतलब कि आपको कोई भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसको मैनेज करना है। टाइमली हमें इम्यूनाइजेशन कराते रहना है, जैसे मिजल्स वगैरह के जो इम्यूनाइजेशन होते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है ताकि अगर डिजीज की स्टार्टिंग हो तो वो हमें टाइमली पता चल जाए, जिससे हम उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। ईयर सर्जरी या ईयर प्रोसीजर अगर आप करवाते हैं तो वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल से ही करवानी चाहिए, कहीं भी नुक्कड़ और लोकल शॉप्स पे नहीं जाना चाहिए, जिससे हमारा ईयर प्रिवेंट रह सके। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन एक कॉमन ईएनटी कंडीशन है जिसमें ईयर ड्रम में होल हो जाता है। इस टॉपिक में हमने डेफिनेशन, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, टाइप, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन और प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा। अर्ली डायग्नोसिस एंड और प्रॉपर ट्रीटमेंट से हियरिंग लॉस और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसलिए ईयर हाइजीन मेंटेन करना, इन्फेक्शन का टाइमली ट्रीटमेंट लेना और अनसेफ ईयर प्रैक्टिसेस से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू द एजू एम्पायर। थैंक यू।